اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، بالخصوص وہ میرے بہن بھائی جن کا LLB 5 ایئرز فرسٹ ایئر ہے، پہلے یا دوسرے سیمسٹرز میں ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت سول جج یا دیگر لا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن جو کہ لیکچر نمبر 1 ہے، پارٹ 1۔ ٹاپک کے حساب سے بیٹا آپ لوگ دیکھ لیں، کلینیکل ووکیشنل لیگل ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے 2018 SCMR 1891۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جو اس وقت کے ہمارے موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا حکم ہے، یہ فیصلہ۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا موضوع سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی فردر ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر جائیں گے۔ اس کا ایز اے ہول سارا مقصد آپ لوگوں کو پروفیشنل لیگل ایجوکیشن کے بارے میں بتانا ہے۔ کلینیکل شاید آپ لوگ پڑھ کے حیران ہوں گے کہ پہلے صرف کلینیکل میڈیکل کے حساب سے پڑھا سمجھا جاتا ہے، لیکن کلینیکل لا کے حساب سے کیا مفہوم ہے، اور ووکیشنل جسے عام طور پر پیشہ ورانہ کے نام سے پکارا اور بلایا جاتا ہے، اس کا لا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بیٹا ابتدا میں ہی ایک بہترین مشہور قول اور بات جو کہ امریکہ کے فلاسفر ہیں جان ڈکنسن، انہوں نے لکھا The objective of legal education is not to make a man a complete lawyer، کہ قانون کی تعلیم کا مقصد ایک مکمل وکیل بنانا نہیں ہے۔ نیکسٹ بیٹ آپ لوگ پڑھیں، but only to start him on the way to be a complete lawyer، لیکن اسے اس راستے پر ڈال دینا اصل مفہوم اور مطلوب ہے کہ وہ ایک مکمل لائر بن جائے۔ بیٹا قانون کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مکمل وکیل بن جائیں، بلکہ آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دینا کہ آپ کل کو آنے والے وقت میں ایک بہترین مکمل لائر بن جائیں۔ اس گفتگو کے آغاز میں ہی میں نے یہ بیٹا قول آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، سلائیڈ پر آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سیریز شروع کرنے کا بیٹا مقصد کیا ہے، یہ ہمارا آپ ایسے سمجھ لیں انٹروڈکشن ہے اس ٹاپک کا اور لیکچر کا۔ نیکسٹ آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات لے کے آئیں، ہاؤ آئی کین بیکم اے گڈ جج لائر، کہ میں کیسے بہترین جج یا لائر بن سکتا ہوں۔ اس کے بعد بیٹا یہ کوشچن مارکس ہیں، ہو، وین، ویئر
व्हाट, व्हाई। कैसे बन सकता हूँ बेहतरीन जज या वकील? कौन बन सकता है, कब, कहाँ, किन हालात में? या गुड जज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट। अब ये है ना, लास्ट में आप देखें बहुत डीप बात है, व्हाई आई वांट टू बिकम अ गुड जज और लॉयर। बेटा इन तमाम बातों का आंसर इंशाल्लाह ताला हमारे इस लेक्चर में होगा जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बेटा आ जाएं, थोड़ा सा हम रिसर्च की तरफ भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे। रिसर्च टॉपिक को देखेंगे, जैसे आप लोगों के 5 इयर्स LLB में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी जिसमें असातिज़ा इकराम आप लोगों को बार बार रिसर्च की असाइनमेंट्स वगैरह देंगे। हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का असल मकसद क्या है, वोकेशनल या लीगल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना। अब इसकी पाकिस्तान में बेटा हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2007, उसके बाद 2013 और उसके बाद 2018 में इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि पाकिस्तान में इस वक्त लीगल एजुकेशन की क्या पोजीशन है, कौन कौन से मसाइल हैं और हमारे वकला साहबान या हमारे जज साहबान उनकी क्या पोजीशन है, इस हिसाब से कि दुनिया किस हिसाब से चल रही है, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है और पाकिस्तान में लॉ की क्या पोजीशन है, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंट बार मौजूद है, क्या इसके तकाज़े कौन से हैं कि हम एक कॉम्पिटेंट लॉयर साहब बनाएं, क्या वो कल को कॉम्पिटेंट जज जिसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं हर हिसाब से, क्या वो ज़िम्मेदारियां अपनी पूरी कर सकेगा, या वकील साहब का बेटा आप लोग हिसाब ले लें। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में। रिसर्च क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने आ रहा है, वेदर द लॉ स्कूल्स इन पाकिस्तान आर टीचिंग द स्टूडेंट्स द क्लिनिकल वोकेशनल लीगल एजुकेशन। मेथडोलॉजी बेटा इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे, और इस तालीम की अहमियत क्या है जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटेशंस की तरफ भी बेटा हम लोग आएंगे कि किन बातों को, किन हालात को, किन वसाइल के ताबे फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारी मजबूरियां क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हेल्पफुल होंगी बेटा जब आप लोग फर्दर हायर एजुकेशन में थीसिस की तरफ जाएंगे या अपना रिसर्च पेपर वगैरह लिखेंगे। असूल यही होगा चाहे आप लोगों का टॉपिक कोई और हो। बेटा अब नेक्स्ट हम जाते हैं इस बात की तरफ, जैसे शुरू में मैंने आप लोगों से गुजारिश की कि लॉ को हमने पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, और इन फ्यूचर जज हम कैसे बन सकते हैं। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का क्या तरीक़ाकार है, और एक काबिल वकील बनने के लिए आप लोगों को ज़माना तालिब इल्मी में बिलखसूस जब आप लोग लीगल एजुकेशन लॉ स्कूल में हासिल कर रहे हैं, किन बातों की तरफ, किन चीज़ों की तरफ जाना है। और बिलखसूस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी यही हुक्म था कि बच्चों को वो तरबियत दी जाए, वो ट्रेनिंग दी जाए कि कल को आने वाले वक्त में एक बेहतरीन वकील साहब बने, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर वो अपनी खिदमत बतौर जज साहब सर अंजाम देना चाहते हैं तो वो हर लिहाज से कामिल हों। बेटा क्लिनिकल या वोकेशनल
लीगल एजुकेशन, सिर्फ एक ही बात आप लोग अपने जहन में इस वक्त बिठा लें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ फील्ड की क्या हैं, इस वक्त अदालतों में कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन से सवालात हैं और उनको हैंडल और टैकल किस तरीके से किया जा रहा है। अगर आप लोगों को इस दौरानिए में इसकी बेहतरीन तालीम दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला बफज़ल रब्बी आप लोग कल को इन फ्यूचर बेहतरीन लॉयर बन के अपने इदारे से निकलेंगे। उसके बाद व्हाट्सएवर जो भी मुल्की कानून है उसको फॉलो करें विद रिस्पेक्ट टू रूल्स, रेगुलेशंस एंड टाइम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आप लोग एक कामयाब इंसान होंगे। अब हमारा असल फोकस बेटा किस चीज़ पर होगा, कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें आप लोगों को बतानी हैं जिसकी वजह से आप लोगों की लीगल एजुकेशन बेस्ट हो सके। उसके लिए बेटा गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग क्लिनिकल लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसके वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों के जो जो सब्जेक्ट्स हैं फ़िलहाल, जैसे शुरू में अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेगुलेशंस के बेटा दो इदारे हैं बड़े, हमारी हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान बार काउंसिल। अब 5 ईयर्स जो आप लोगों का प्रोग्राम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से है और ये मुकम्मल डिग्री है हर हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ कॉलेजेस पर लगाई हैं, तरीक़ाकार सारा बताया हुआ है। इस वक्त वो पूरी जजमेंट डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है। असल मकसद हमारा बेटा ये है कि आप लोगों को किस हवाले से बेहतरीन तैयार किया जाए। तो उसके लिए मेन आज के लेसन की बेटा पहली बात ये है कि जैसे आप लोगों का सेमेस्टर पहला था इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसमें आप लोगों के टॉपिक्स कौन कौन से हैं और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू क्लिनिकल लीगल एजुकेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरे सेमेस्टर में जैसे आप लोगों का लॉ ऑफ टार्ट्स है या दीगर प्योर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह तीसरा चौथा सेमेस्टर बेटा इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर चीज़ की बेस बता दूँ, उसकी रेलिवेंट जजमेंट्स बता दूँ, आप लोगों को जजमेंट पढ़ने का तरीका, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, आर्गूमेंट्स, रीजंस, लॉजिक एट्सेट्रा। जब सब चीज़ों पर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अबूर हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन काबिल वकील की हैसियत से आप लोग अपने इदारे से फरागत पाएंगे। तो बेटा आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। अब नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स देखते जाएंगे और उन सब्जेक्ट्स के हवाले से आप लोगों को टास्क भी दिया जाएगा जिसे आप लोग होमवर्क कह सकते हैं और इससे मुतल्लिका आप लोगों की जो सजेशंस होंगी, क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाअल्लाह ताला बेटा आंसर करेंगे। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपना एक ऐसे समझ लें कि पैटर्न सिलेबस सेटल करेंगे कि किस हिसाब से हमने आगे जाना है और कितने वक्त में हमने इन सारी चीज़ों को कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग बेटा दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करें, कौन कौन सी जजमेंट्स आप लोगों को दें और आप लोगों का इम्तिहान या होमवर्क क्या होना चाहिए।
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.